Hi guys. So we entered into the last type of pronoun. It is called reciprocal pronoun. So here is the definition of reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun are that pronoun when two or more subjects are acting. So this is the important word in this sentence. Two or more two subjects are acting in the same way, towards the others. So here are a few examples. We will check the how they are two subjects are acting in the same way. So is the first sentence. Please don't tell one another secret. So usually we also avoid to tell secrets to other people's. Same way, both will act as in the same way don't tell another about the secrets. So in first sentence, it's now our responsibility to find out particularly that word where reciprocal pronoun is mentioned in the first sentence. So one and other, this is the actually reciprocal pronoun. In second sentence, Zaid and Faraz trust each other. So again, same method will be applied. Each and others is the reciprocal pronoun. In the third sentence, the two trains hit each other. The two trains hit each other. Here is the reciprocal pronoun, each other. So in the last sentence, they are open and honest with one another. So one and other, this is the reciprocal pronoun. So just we try to teach you about the pronoun and all types of pronoun. Now I am going to teach my Pakistani students in Urdu about reciprocal pronoun. सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जैसा कि हम इसको पढ़ चुके हैं, ये 8वां टाइप है प्रोनाउन का। तो इसकी डेफिनेशन को ज़रा देखते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन और दैट प्रोनाउन वो प्रोनाउन है व्हेन जब टू और मोर सब्जेक्ट्स, जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक तरह के ही सेम वे में काम करें, एक्टिंग में कोई भी काम एक ही तरीके से करें टुवर्ड्स द अदर्स, एक दूसरे के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिखा है, इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा तफसील के साथ समझ आएगी कि ये जो एक ही तरह का काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। पहले देखते हैं हम इसमें, प्लीज़ डोंट टेल एन अदर द सीक्रेट। इसमें ये कहा जा रहा है कि मेहरबानी करके जो राज हैं वो किसी को भी आप, दो लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि डोंट टेल एन अदर, किसी को भी आप राज अपने न बताएं। टेल माने बताना हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा है इन सारे जुमलों में, तो मैंने इस पे लकीर लगा दी है। तो वन एंड अदर जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। फिर अगले जुमले में हम देखते हैं जैद एंड फराज ट्रस्ट ईच अदर। अब इसी जुमले में भी हमने देखा है कि जुमले में अल्फाज तो कई हैं, लेकिन हमने तलाश क्या करना है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ईच अदर जो है वो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है इस जुमले में। तो हमारे बच्चे जब भी किताब पढ़ते रहते हैं तो इस तरह के अल्फाज उनको अपनी बुक्स में मिलते हैं। तो अब हम ये सब कुछ पढ़ने के बाद बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि हम अपनी किताब में उन अल्फाजों को खुद अंडरलाइन करेंगे और हमें ये पता चलेगा कि ये ग्रामर में प्रोनाउन के किस खानदान से ताल्लुक़ रखता है और उसको हम समझेंगे। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। द टू ट्रेन हिट ईच अदर। दो गाड़ियों ने एक दूसरे को हिट किया है, एक दूसरे के साथ टकरा गई हैं। तो ईच अदर यहाँ पे भी जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो अगला जुमला है दे आर ओपन एंड ऑनेस्ट विथ वन एंड अदर, कि वो जो हैं वो खुले हुए हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि खुलकर ईमानदार होते हैं, तो यहाँ पे भी ये चीज नजर है, दे आर ओपन एंड ऑनेस्ट विथ वन एंड अदर। वो एक दूसरे के लिए
ईमानदारी में खुले हुए हैं, बिल्कुल ओपन हैं, साफ हैं। तो यहाँ पर भी वन एंड अदर जो है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ओके गाइस, as you know, we have completed our journey in the city of pronoun. So before we leave this station, we move to the next for the next station. I just want to give you some very important information about personal pronoun. If in personal pronoun sentence, if two or more than two means three subjects came in one sentence, then mostly I have noticed our students are facing difficulty to solve the errors in during the exam or during the job test. So this is very beneficial video for them. The first person is I, and you also work here is the second person singular. He, she, these both are third person singular pronouns, and this one is a noun. So I just write here these pronoun and noun to give you a chance to find out where are the errors. I have written the first sentence. Come, let's read with me. He, I, and Shazib are playing. So he, I, and Shazib are playing. So here is a error actually. Now it's your responsibility to find out where is the error as per grammar point of view. So think about that. I want to give you the chance, and later on I will tell you. But before I tell you everything, I would like to go to the second sentence and till to the end. After that I will remove the errors, and till then you have a chance to think about that. Be with me. In second sentence is written here, you and me are playing. You and me are playing. Here is also error. So you have a chance to think about that. In the third sentence, you, he, and I are playing. So you can also think about that, where is the error or not. So it's your responsibility to find out. In the fourth sentence, you and I are playing. So again, same words I don't want to repeat. Your task is same. The last sentence is the me and I are playing. So now the time to check where are the actually errors and how can find out, how can we correct all these sentences. At this moment, these are some sentences are incorrect and some are correct. So let's check it, which one is the correct and which one is the incorrect. He, I, and Shazib. This sentence actually at this moment is incorrect sentence. Why? Why? What is need to do? So the thing is, he is the third person singular. We will change it into the you. You and I also will be removed from here. You, we will give here comma, you, he, you and he. We remove this one also. You, comma, he and I are playing. So keep in mind, you will come first. Later on, the third person singular will come, he, and at the end after and will first person singular I will come, and we will write are. Just because of that, there are three subjects. Due to that, we write here are playing. Now this sentence is correct. If the sentence is correct, then we will tick the mark of correct. Move to the second sentence. You and me are playing. As I told you, here is a error, and error, what error? Me will not as a subject or pronoun.
keep in mind, me will not work as a subject pronoun. So what we are actually, these are subject pronouns. So me is not subject pronoun. That's why it will be removed. What we will write here? You and I are playing. When we write I, then this sentence will be correct. And move to the third one. You, he and I are playing. Look this one, which we just corrected. The structure of subjects are similar here. You, he and I are playing. This one is perfect sentence and correct sentence. And we are moving forward to the fourth one. You and I are playing. You and I are playing. This one is the second person singular. So second person singular will come after and. We will write and later on we will write first person. So this sentence is also correct. Are came here because there are two subjects. Due to that we write here are, and this is the already correct sentence. And last one is the me and I are playing. So again same thing, I want to tell you that me is not subject pronoun. So if me is not subject pronoun, then what we'll do? We will remove it. We will remove it. This will not come as a subject pronoun. So we can write here she. If second person is not there and third person is there, so we can write third person also, because second person is not here in sentence. Due to that we write third person. She and I are playing. This sentence will be correct. We will be moved after comma, and but second person is not here. Due to that we write here she and I are playing. This sentence is now correct. Now I am going to teach my Pakistani students and will explain them same. आइए पाकिस्तानी दोस्तों, हमने आज चूँकि ये सफ़र तय किया है, हमने प्रोनाउन का सारा शहर हमने घूम लिया है, जो भी लोग हमारे साथ हैं, और उसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस देखी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। हर प्रोनाउन की अपनी एक कॉलोनी में हम गए और उसके तमाम फैमिली मेम्बर्स से मिले और उनमें सेंटेंसेस बनाए। और एक ख़ास चीज़ जो पर्सनल प्रोनाउन के मुतालिक है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा है कि उसमें हमने 7 पढ़े थे, लेकिन इस वक्त मैंने सिर्फ 5 लिखे, 4 लिखे और 5वां हमारा नाउन है। आई, यू, ही, शी, और एक नाम है शाजिब। मैंने बताया था आपको कि आई वो है सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है और यू भी सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, लेकिन यहाँ पर हम इसको सिंगुलर के तौर पे ले रहे हैं क्योंकि इस फार्मूले में सिंगुलर के तौर पे आएगा। ही भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है और शी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो बात यह है कि जब हमारे बहुत सारे नौजवान साथी कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई इम्तिहान देने जाते हैं, तो वहाँ वो जब इस तरह के जुमले देखते हैं कि 2 या 3 सब्जेक्ट एक ही जुमले में हैं तो उनमें एरर होते हैं। वो कहते हैं कि इसमें वो गलत लगा के देते हैं, वो ये कहते हैं कि इसको सही करके दिखाएं। तो जब हमें हमारे नौजवान को, हमारे यंगस्टर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा कि इंग्लिश में इसका बेसिकली फार्मूला कहता क्या है, तो उस फार्मूले को जब तक वो नहीं समझेगा तब तक वो उन जुमलों को दुरुस्त नहीं कर पाएगा। तो इसका फार्मूला कुछ ऐसा है कि हमने इसको हमेशा जो सेकंड पर्सन है, अगर 3 सब्जेक्ट हैं तो हमें सेकंड पर्सन का सिंगुलर पहले रखना है। याद रखें कि सेकंड पर्सन, अगर 3 सब्जेक्ट हैं, प्रोनाउन है इसमें, तो हमने सेकंड पर्सन जो है सिंगुलर वो पहले रखना है, जैसे हमने यहाँ रखा है। उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर थर्ड पर्सन जो है हमारा प्रोनाउन है वो हमने रखना है। उसके बाद एंड लगाना है, फिर आई लिखना है, फिर आर लिखकर प्लेइंग जो भी वो वर्ब है वो हमने लिखना है। अब यहाँ पे आपके सवाल आपको दिखेगा कि आई के बाद तो मोस्टली हम एम लगाते हैं, यहाँ आर क्यों? तो इसका फार्मूला ये है कि क्योंकि ये एक से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पे आई के बाद आ रहा है तो एम नहीं आएगा, इसलिए ये यहाँ पे दुरुस्त करार दिया गया है। अपने इंग्लिश के वीडियो में मैंने देखा होगा, मैं वो सारे सेंटेंस दोबारा नहीं दोहराऊंगा, सिर्फ आपको समझाना ये चाहूंगा
कि जब 3 हो तो हमने इस तरह करके देख लिया, पहले कौन सा आएगा हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर कौन सा आएगा कामा लगाने के बाद थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद एंड लगाने के बाद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा। जब अगर 2 प्रोनाउन हो, 3 नहीं होते 2 होते हैं, तो फिर भी हमें यही फार्मूला करना पड़ेगा कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमें पहले लगाना पड़ेगा, एंड लगा के फिर आई लगाना पड़ेगा, फिर हमें आर लगाना पड़ेगा, फिर जो भी वर्ब हमारा हुआ वो हमें लगाना पड़ेगा, इस तरह वो दुरुस्त होगा। ये तो ऑलरेडी दुरुस्त था, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ देखें आपको सेकंड पर्सन नजर आ रहा है, फिर आपको कामा लगाने के बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन नजर आ रहा है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और उसके बाद एंड लगा के हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया है कि, और उसके बाद आर लगा के प्लेइंग वही लिखा हमने। तो इसकी तरतीब ग्रामर के हिसाब से जैसे है वो ऐसे ही दुरुस्त रहेगी, तो आपका वो जुमला दुरुस्त करार पाएगा और आप वो इम्तिहान में नंबर उठा पाएंगे। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे देखें यू एंड आई आर प्लेइंग, यहाँ पे भी हमने सेकंड प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन को पहले रखा है, उसके बाद आई को रखा है, एंड के बाद आर प्लेइंग, ये बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ था मी एंड आई, यहाँ पे अगर कुछ और लिखा हुआ था शी एंड, अगर यहाँ सेकंड पर्सन इसमें नहीं है, याद रखें अगर सेकंड पर्सन किसी जुमले में नहीं है, यू नहीं है और अचानक ही थर्ड पर्सन से शुरू हुआ है, तो हमें पहले थर्ड पर्सन रखना होगा, उसके बाद फिर एंड लगा के फिर आई फर्स्ट पर्सन रखना होगा और आर प्लेइंग। तो इस तरह हमारे जुमले जो हैं वो दुरुस्त होंगे और एरर्स इस तरह हम ख़त्म करेंगे। और मुझे यकीन है कि आपने मेरे साथ इस सफ़र में जो है वो पूरे प्रोनाउन के शहर को विज़िट किया, इसके तमाम तर अच्छे अच्छे मकामात पे विज़िट किया, उसमें हर प्रोनाउन के टाइप का एक अपनी कॉलोनी थी और उस कॉलोनी को तमाम हमने अच्छे तरीके से सैर करके बहुत कुछ सीखे हैं। और आखिरी हमने फार्मूला इसमें ये भी सीखा है कि जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट किसी प्रोनाउन में आते हैं तो हमें उनके एरर्स वो दे देते हैं इम्तिहान में, टेस्ट में, तो उनके एरर्स हमें कैसे खुद पता होगा, अच्छी तरह हमने समझेंगे तो हम वहाँ जाके इजीली उनको हल कर सकेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस सफ़र में मेरे साथ, जब मैंने ये सफ़र शुरू किया था तो ज़ीरो से थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1200 से ज़्यादा व्यूअर्स हैं। इसका मतलब आप सीखते जा रहे हैं, आप इस सफ़र में शामिल हैं, और 150 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हैं जो इस ट्रेंड में मेरे साथ हैं। और हम आहिस्ता आहिस्ता ABC से लेकर और नाउन प्रोनाउन से लेकर अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बाकी सफ़र के शहरों को देखते हुए जाएंगे, सीखते जाएंगे, और उस वक्त तक चलते रहेंगे, सफ़र में शामिल रहेंगे जब तक कि हम अपने इंग्लिश को एडवांस लेवल पे नहीं ला जाते। तो बहुत शुक्रिया आपका, मेरा चैनल देखते रहिएगा। अगर आपको ये कोशिशें, ये काविशें जो मुफ्त में आपको मिल रही हैं अच्छी लग रही हैं आपको, तो बराए मेहरबानी इसको जो है लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स और जो इसको मज़ीद इम्प्रूव करें कमेंट्स देते रहें। अपने सर आसिफ रसूल को इजाज़त दें, हम मिलेंगे अगले स्टेशन पे एक नए पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।